Next topic is of birth control. How we control the population of world. In previous topic, we studied that population explosion. Due to population explosion, many problems faced right now the complete world. So the different devices or different method which control or prevent the pregnancy, that is known as contraceptive devices, and such type of method is known as contraceptive methods. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैसे होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. दे आर यूजर फ्रेंडली. यूजर करने वाला जो उनको यूज लेगा वो उनसे फ्रेंडली हो. ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो वो यूज नहीं करें. इजीली अवेलेबल हर जगह पे, हर सोसाइटी में, हर प्लेस पे वो इजी अवेलेबल हो सके. चीपर, सस्ते होने चाहिए. अगर सस्ते नहीं होंगे तो हर लेवल का, हर सोसाइटी का आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा. इफेक्टिव होना चाहिए. ऐसा नहीं यूज करें और वो इफेक्टिव नहीं हो. साइड इफेक्ट, दैट इज द गुड इंपॉर्टेंट थिंग. साइड इफेक्ट, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो. अगर साइड इफेक्ट होंगे तभी लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द नॉट इंटरफियर द सेक्सुअल एक्ट, दैट विल बी नॉट अफेक्ट देयर सेक्सुअल इंटरकोर्स also. So these are the characters will be present in the contraceptive devices or contraceptive methods that time that user will be utilized. So mainly 4 types of contraceptive devices is there. First is of mechanical devices. They can say barriers. That barriers means that prevent the mixing of eggs एंड स्पर्म. इनका मेन काम होता है एग्स और स्पर्म को कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं, इसलिए इनको मैकेनिकल बैरियर कहते हैं. फर्स्ट वन इज अ कॉन्डोम. मेल कॉन्डोम्स जो होते हैं, दीज आर द प्लास्टिक पाउचेस that is utilized by the males, and that is help in the prevention of that prevent the fertilization, due to which that sperm is not releases in the female vagina, and it is also protect from many diseases. The STDs से भी ये protect करते हैं. Second one is of diaphragms. Diaphragm utilized by the females that are kept inside the vagina, and they are multi-uses. Condoms are for one-time uses, but the diaphragm is of multi-uses. Both the easily available, cheaper, user-friendly, effective. ये सब कुछ इनके साथ हो सकता है. साइड इफेक्ट भी नहीं है और they not affect the sexual intercourse. But next one is of IUDs, intrauterine devices. These are the such devices which is implant inside the uterus. इनको uterus में implant कर सकते हैं, just like copper T, copper 7 and multifold, multiloid 375. Multiloid, these are the different types of copper devices which is implant inside the female uterus. They release copper ions. ये क्या करती है? copper ions release करते हैं. The copper ion has the spermicidal activities. वो क्या sperm को destroy कर देती है, जिसकी वजह non functional sperm नहीं रहेंगे, fertilization नहीं होगा. Some devices that is the hormonal releasing, just like LNG20. LNG20 is of hormonal releasing this device. Hormonal releasing device that release the hormones that affect the prevent the implantation, जिसकी वजह से अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन या एंडोमेट्रियम वॉल के साथ जो एम्ब्रियो है, एग्स है, जाइगोट है, वो जाइगोट दैट इज फर्टिलाइज्ड एग्स विल नॉट अटैच्ड. तो LNG20 that prevent the implantation. Second type is of chemical methods. Different types of chemicals that is also used to prevent the pregnancy. Some tablets and jellies are available in the markets, that is the spermicidal, and these are taken before the coitus, and if are also applied by the females. Jellies, whenever coitus is there, they will be destroy the sperm. Some are the physiological devices. These are also tablets, but they interfere the physiology of females or different activity of females which not release the eggs, also disturb the LH, luteinizing hormone or follicle stimulating hormones FSH or LH, due to which egg is not released or implantation is not there, but their side effect is there.
So normally these pills, just like we can say copper tea, not Maladi, Saheli, these are the very familiar names that is utilized by the many females. So these are the different chemical tablets which is utilized by the males, especially females only. नेक्स्ट वन जो नेचुरल मेथड्स भी एक गुड मेथड्स होते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसको कोई कॉस्ट नहीं है. जस्ट लाइक टू अब्सटेंस मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द कोइटस से बचना भी एक नेचुरल मेथड्स होता है. सेकेंड वन इज कोइटस इंटरप्टस मीन्स whenever the coitus is there, whenever sexual intercourse is there, that male will be ejected their sperm outside the female vagina. That he will be not deposited sperm inside the female vagina. That's why we can prevent from the fertilization or pregnancy. And it is most important, that is Rhythm period. Rhythm period क्या होता है? That is rhythmic activity. We all know on 13 or 14 day the egg released by the ovaries, and egg will be survive 24 hours to 48 hours, and sperm also survive inside the female vagina and uterus, normally during these hours. If during that time they will be meet, fertilization will be there. अगर इस ड्यूरेशन को अवॉइड करके चलें, 13-14 डेज जब पे एग रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. दैट इज द गुड मेथड्स. एंड LAM, दैट इज लैक्टल एमिनोरिया. LAM क्या होता है? लैक्टल एमिनोरिया मीन्स ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड जब होता है आफ्टर द बर्थ, जब मदर्स फीडिंग कराती है बच्चे को, तो उस ड्यूरेशन में लैक्टोजन हार्मोन का सिक्रेशन मैक्सिमम होता है, एंड दैट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ एग्स, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज स्टॉप्ड. तो लैक्टल एमिनोरिया के वजह से भी that is also type of natural methods due to which the fertilization will be not there. And last one is of surgical methods, that is also called sterilization methods. It is of two types, vasectomy or tubectomy. Vasectomy adopted by the male and tubectomy female by the females. During this time, male and female, in male vasectomy, that is vasa differentia or sperm duct cut and joined together due to which sperm cannot transfer, and tubectomy during this time, in tubectomy, that fallopian tubes cut and tie the particular place, due to which if the egg is there, that will be not reach into the uterus, and that will be not fertilized. These are the surgical methods. Sometimes that is the reversible, but not always. So these are the four methods through birth control, that mechanical barriers, chemical methods, natural methods, or surgical methods. MTP. The full form of MTP is that medical termination of pregnancy. अगर प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट किया जाना है, वो ही MTP कहलाती है. MTP केवल पहले 3 महीने में ही की जा सकती है. उसके बाद मदर्स के लिए वो हार्मफुल हो सकती है. फीटस को तो वैसे ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा, तो 12 वीक के अंदर इसको कर सकते हैं, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको किया जा सकता है. अगर उसके बाद करें तो वो हार्मफुल होगी. इफ वी सी इन द वर्ल्ड टोटली, every year 45 to 50 millions MTP is done per year. 45 से 50 मिलियन MTP डन की जाती है. दैट इज द 1/5 ऑफ द कन्विंस प्रेगनेंसी. जितनी प्रेगनेंसी कन्विंस्ड हुई है, 100 में से 20 प्रेगनेंसी MTP के थ्रू टर्मिनेट की जा सकती है. MTP इज द बेटर मेथड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक ये बहुत अच्छा मेथड है, परंतु इसको आजकल धीरे धीरे मिसयूज किया जाने लगा है. मिसयूज यानी बहुत सारे देशों के अंदर जब फीमेल चाइल्ड को, स्पेशली दे विल फाइंड आउट द सेक्स ऑफ एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ एम्नियोसेंटेंसिस, एंड आफ्टर दैट इफ द मेल चाइल्ड विल बी देयर, दैट विल बी सर्वाइव. अगर फीमेल चाइल्ड होता है तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इसलिए इंडिया में इसको
71 में बेंड कर दिया, 71 में, परंतु कुछ कंडीशंस में एमटीबी लीगल है। इन कंडीशन में अगर बच्चे में कोई जेनेटिक डिजीज है तो उस कंडीशन में एमटीपी किया जा सकता है, अदरवाइज दैट एमटीपी इज बेंड टोटली इनसाइड द इंडिया, क्योंकि इसके मिसयूज होने लग गए हैं, परंतु इसके थ्रू ह्यूमन पॉपुलेशन को डिक्रीज किया जा सकता है, बट नाउ the ratio of male and female is decreasing in India as well as in the world. That's why it is banned in many countries along with the India. The next is of STDs, that is sexually transmitted disease, venereal disease or reproductive tract infections. RTI, that is reproductive tract infections. These are the different diseases related with the reproductive tracts. तो वी कैन प्रिवेंट दिस। सबसे पहले अपन बचाव कैसे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हाउ वी प्रिवेंट फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज बाय द यूजिंग ऑफ कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स को यूटिलाइज करेंगे तो बहुत सारी डिजीज से बचा जा सकता है। बाय प्रोवाइडिंग सेक्स एजुकेशन टू द फर्टाइल कपल्स को सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड है। एंड कंसल्टेंसी ऑफ डॉक्टर से वो कंसल्टेंसी ले डिजीज से, क्योंकि ये these disease are related to the sex organs, that's why some persons hesitate to meet the doctors। तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, जाके फ्रीली डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, जिससे कि उन एसटीडी से वो बचा जा सकता है। एंड अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, जिससे सेक्सुअल डिजीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज देखते हैं अपन। सबसे उसमें क्लेमाइडाइसिस इज द बैक्टीरियल एसटीडीज दैट इज ट्रांसफर थ्रू क्लेमाइडिया ट्रैकोमोटिस बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू ये ट्रांसफर होता है, और ये बैक्टीरिया इसमें इन्फेक्टिव एजेंट होता है। इसमें जो जेनाइटल ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उनमें वाइट डिस्चार्ज रिलीज होने लग जाता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, उसकी वजह से ये स्पेशली ये बैक्टीरियल डिजीज है क्लेमाइडिया ट्रैकोमोटिस। दूसरी गोनोरिया होती है निशेरिया गोनोरिया से, ये भी सेक्सुअली एक्ट के थ्रू होती है, और इसमें भी बर्निंग सेंसेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसमें सिम्टम्स हो सकते हैं। तीसरी होती है सिफिलिस, ये भी बैक्टीरिया से होती है, ट्रिपोनोमा पैलिडियम बैक्टीरिया से होता है। देन एड्स, you all well known about the AIDS, it is caused by the HIV, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। कैसे फैलती है, किस तरीके, सभी को तुम्हें पता है। देन हेपेटाइटिस, दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस किससे होती है? हेपेटाइटिस HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू होती है। इट इज ऑल्सो ट्रांसफर थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। एंड जेनाइटल हर्पेस, दैट इज हर्पेस वायरस के थ्रू। ये लास्ट की तीनों वायरल डिजीज है, शुरू की तीनों बैक्टीरियल डिजीज है। ये all are spread through the sexual contact especially, but the AIDS also spread through the infected syringe and mother to baby, और इनसे हो सकती, बाकी सारे sexual contact के थ्रू ट्रांसफर होती। तो these are the different types of STDs we can prevent from the different types of disease, जो कि अपन पहले ही बात कर चुके हैं किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। And the last topic of this chapter, that is the important topic, without discussion of this topic we cannot finish the reproductive health। बिना इसके बारे में बात किए हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, वो है इनफर्टिलिटी। आजकल हम देखते हैं कि वर्ल्ड की बहुत सारी कपल्स इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है टुडेज लाइफस्टाइल की वजह से वो इनफर्टिलिटी उनमें फैलती जा रही है। उनका खान पान सही नहीं है, उनका जो वो यूटिलाइज कर रहे हैं, या जो उनकी दिनचर्या है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से वो इनफर्टिलिटी। फिजिकल रीजन हो सकते हैं, बॉडी रीजन्स हो सकते हैं, बहुत सारी डिजीजेज हो सकती है, उसकी वजह से भी वो इनफर्टाइल हो रहे हैं।
कंजीनियल डिजीज जन्मजात हो सकती है, बाय बर्थ बहुत से में हो सकती है जो इनफर्टिलिटी, कुछ ड्रग्स अब्यूज होते हैं उसकी वजह से भी डिजीज हो सकती है, और इम्यूनोलॉजिकल रीजंस। सो दीज आर द डिफरेंट रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी। परंतु इन रीजंस को पार पा करके उनको फर्टाइल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्ट, दैट इज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और टेक्नोलॉजीज। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू, आर्ट के थ्रू हम इनफर्टाइल कपल्स को फर्टाइल किया जा सकता है। बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है, उनके थ्रू इनके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आर्ट का मतलब असिस्टेड, उनको असिस्ट किया जा सकता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसमें सबसे पहली है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको कह सकते हैं आईवीएफ। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एग भी बाहर लिया जाता है आउटसाइड द मदर्स बॉडी, और स्पर्म भी बाहर लिया जाता है। उन दोनों को आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में फर्टिलाइज कराया जाता है, और 8 to 16 सेल तक ये यहीं पर डिवाइड होंगे, देन टू ट्रांसफर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी को अपन कह सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी यहाँ जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, उसी को अपन ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इसके थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है क्या कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग को, और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को निजात पा सकते हैं। दूसरा है जिप्ट। ZIFT, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा यानी यहां पर जाइगोट को, वही चीज आ गई, जाइगोट को कहां ट्रांसफर किया जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। क्योंकि अगर जाइगोट को इनिशियल 4 to 8 वाली स्टेज या 8 to 16 वाली स्टेज के अंदर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो वहां से आएगा वो यूट्रस में आकर के इम्प्लांटेशन हो सकता है उसका। जाइगोट को ट्रांसफर कर सकते हैं, या गेमीट, GIFT। गेमीट यानी कभी कभी जो फीमेल्स ऐसी होती है, देयर यूट्रस इज हेल्दी बट दैट नॉट प्रोड्यूस एग्स। In such condition that we have to taken eggs from different female and sperm from the particular female, तो वहां पर एग्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी गेमीट यहाँ पर दोनों ट्रांसफर कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। वहां फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन और गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक और टेक्निक्स है, उसको कहते हैं AI, artificial insemination. Sometimes due to not proper insemination, that fertilization is not there, so वहां पर artificially sperm को inseminate किया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, और इनफर्टाइल कपल को फर्टाइल किया जा सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आर्ट due to which that infertile couple may be fertile, just like IVF, गिफ्ट, जिप्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इन सभी के थ्रू इनफर्टिलिटी को ओवरकम किया जा सकता है।